so I'll just introduce Amit to everyone. Amit Bansal is the CEO and co-founder of 91 Square Feet, who has achieved a lot in this young age. I think within 3 years, what we have seen scaling a company to 100 CR, and there is no stopping as of now. What we could see. So Amit would love to hear from you about the company, about 91 Square Feet, how exactly you started it, what was the vision in mind, and where are you up to now? Yes. So thank you, Arpit. Hi, everyone. So we started this company in the mid of 2021, and the objective and the dream behind starting 91 Square Feet is we wanted to use technology to bring efficiency into project management. Our view was जो भी projects India में manage हो रहे हैं, the way the projects are being managed, there is no method to madness. There are multiple stakeholders involved. There's a high degree of coordination happening at a very high frequency in a small window. So we thought, can we build a technology platform wherein we can streamline project management and digitize the supply chain around whatever the components and the supply components involved in the project management? And if we are able to do that, would it translate into some efficiency on the back of which we can bring macro level efficiency in the industry and can build a large business? So that was the initial dream and the vision of starting this company, to bring technology into project management, to solve for efficiency and scale a design build setup. इस विजन से हमने अर्पित एक कंपनी स्टार्ट की थी, एंड इट्स बीन 3 years. Me and Arpit have worked very closely, seen and learned a lot of things along the way. There's still a lot more components. We are still trying to figure out how to solve these things, but it has been, yes, a very thrilling and rewarding experience. Yeah. So अमित एग्जैक्टली मतलब 3 साल पहले जो आप जिस तरीके से एक विजन जो आपने बताया स्टार्ट किया था, तो आई थिंक अगर आप सबको बताओ कि आज आफ्टर 3 years वेयर डू यू सी योर सेल्फ, लाइक हाउ मच यू हैव अचीव्ड इट, हाउ मच you think ki still I know there is a lot to go, but what helped you all along this 3 years to build this what you built today? So Arpit, I think we have been very fortunate on various levels. I think our stars aligned in the right way for this to happen, because आप देखोगे historically why it is so कि in such a mainstream industry कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अराउंड कोई बढ़िया टेक एग्जिस्ट नहीं करता. रीज़न बीइंग कि जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, जो बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं या फिर इंटीरियर डिज़ाइनिंग कंपनी है, वो कंपनी जितना टेक सेवी नहीं है कि वो एक मेच्योर टेक बनाएं, उसको प्रोपोगेट करें. और जो टेक सेवी एंटरप्रेन्योर्स हैं वो कंस्ट्रक्शन उतना डीपली नहीं समझते हैं. लाइक इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एन आउटसाइडर टू सिट एंड बिल्ड अ सॉफ्टवेयर फॉर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, क्योंकि फर्स्ट वे में बहुत फैंसी चीज़ें दिमाग में आती हैं जो ग्राउंड पे वर्क नहीं करती. शायद दैट वाज द प्रॉब्लम. We also, in the initial part of the journey, we built a lot of fancy features. But when we were thick into the operations, when we were on ground solving day-to-day challenges, that's when we realized what a design build company practically goes through on day-to-day challenges. और उन challenges को solve करने के around जब हमने technology बनाई, तो उससे I think on the last 3 years, we have been solved some of the macro tenets. Like we now understand what's happening on our sites on day-to-day basis. Abhi at any given point in time, 91 Square Feet was be running I think 70 projects at any given point in time. We have completed 1200 projects. तो जब आप इतने स्केल पे ऑपरेट करने की कोशिश करते हो तो you can't be present on every site. तो सबसे पहली जो चीज़ की ज़रूरत होती है कि आपको साइट से सही इन्फॉर्मेशन आ रही हो, वो चीज़ हमने लार्जली सॉल्व कर ली. हमने अपना कैश फ्लो मैनेजमेंट अच्छे से सॉल्व किया. हमने रिकन्सिलिएशन और एक प्रोजेक्ट के ऊपर कितना पैसा बन रहा है, कितना पैसा हम लूज़ कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है. पहले 1-1.5 साल तक तो मैं समझ ही नहीं आ रहा था कि हम काम तो कर रहे हैं पर पैसा बना रहे हैं कि नहीं बना रहे. उस चीज़ को हमने सॉफ्टवेयर से, टेक्नोलॉजी से काफ़ी हद तक सॉल्व किया. कोलैबोरेशन के अराउंड फ्रिक्शन रिजोल्व किया, उससे कुछ एफिशिएंसी आई है. ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने अचीव करी हैं, बट जो चीज़ें अभी भी ओपन है, जो चीज़ें अभी पेंडिंग है, वी डोंट हैव ए क्लियर आंसर एज ऑफ नाउ कि एग्जैक्टली ये 2 चीज़ें करने से आपका प्रोजेक्ट की डिलीवरी एकदम से अच्छी तरीके से हो जाती है. आई थिंक दैट्स द चैलेंज विच इज़ लाइंग अप अहेड इन आवर आरडेस जर्नी, कि कैसे हम बिजनेस को फंडामेंटल लेवल के ऊपर फुल प्रूफ कर पाएँ कि आप अगर ये स्टेप्स लोगे तो आपका प्रोजेक्ट अच्छे तरीके से जाएगा. वो आई थिंक अभी भी काफ़ी ज़्यादा पीपल ड्रिवन, पीपल सेंट्रिक ऑपरेशन है. तो आने वाली जर्नी में कोशिश और एफर्ट ये रहेगा कि जो हमने टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट स्टेज तक हम लेके आए हैं, जहाँ पे बेसिक फाउंडेशनल चीज़ें हमने बिल्ड कर ली हैं, अब इसको कैसे हम स्मार्ट बनाएं ताकि वो प्रोजेक्ट की डिसीजन मेकिंग के अंदर और प्रोजेक्ट का जो एक्चुअल डिलीवरी आउटकम है उसके अंदर कुछ डेल्टा क्रिएट कर पाए. समझ गए. आई थिंक दैट्स
दैट्स समथिंग आई थिंक एवरीबॉडी वांट्स कि वो एक डेल्टा क्रिएट करना और चीज़ों को लेके। तो अमित, मुझे लगता है कि इट इज़ ऑल अबाउट, मतलब इन दिस इंडस्ट्री, मतलब वी ऑल आर वर्किंग टुवर्ड्स डिलीवरिंग समथिंग फॉर अ क्लाइंट। ओके, तो अगर मैं क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से पूछूं कि आपने when you adopted when you started using technology, your value towards client क्या बन पाई, मतलब किस तरीके से क्या हेल्प मिली आपको? सो अगर मैं कंस्ट्रक्शन बिजनेस ओनर के लेंस से देख रहा हूँ चीज़ों को, तो मेरे पूरे बिजनेस के 3 या 4 बड़े लीवर हैं। एक तो मेरा लीवर है माई रिलेशनशिप विद माई कस्टमर्स, राइट। वो अच्छी होनी चाहिए जिसकी वजह से मेरे को रिपीट बिजनेस आएगा, राइट। दूसरा और सबसे बड़ा लीवर, तो डिलीवरी अच्छी कर दोगे तो सब अच्छा हो जाएगा, बट लेट्स से डिलीवरी अच्छी करना, आई एम थिंकिंग ऑफ डिलीवरी अच्छी करना एज एन आउटकम, एंड व्हाट आर द की इंस्ट्रूमेंट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स टू गेटिंग दिस डिलीवरी बेटर, उन कॉन्स्टिट्यूएंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो क्लाइंट रिलेशनशिप एक टेनेट हो जाता है। उसके अलावा आपका जो प्रोक्योरमेंट एफिशिएंसी है कि किस प्राइस पॉइंट पे आप चीज़ें प्रोक्योर कर पाओगे, वो एक दूसरा बड़ा टेनेट हो जाता है। तीसरा आपका जो फाइनेंशियल कंट्रोल है अपने प्रोजेक्ट्स के अराउंड, फाइनेंशियल कंट्रोल एंड कैश फ्लो प्लानिंग, वो एक तीसरा आपका बड़ा टेनेट हो जाता है। और चौथा आपका प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी, राइट। ये 4 बड़े टेनेट है, क्योंकि क्लाइंट की ये 4 चीज़ें अगर आप अच्छे तरीके से कर पाते हो, तो उसके बाद में इट्स बेसिकली इंडिविजुअल कंपनीज कल्चर की वो कैसे कितने फियर्सनेस से काम को आगे बढ़ा सकते हैं और कितने फियर्सनेस से काम को क्लोज कर सकते हैं। लेकिन ये 4 बेसिक फ्रेमवर्क, अगर ये 4 बेसिक चीज़ें सॉल्व नहीं है, तो जो भी लोग ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, हमारी प्रोजेक्ट टीम काम कर रही है, आर्किटेक्ट काम कर रहे हैं, ये लोग इंटरनल चीज़ों में फंस जाते हैं और उस मोमेंट पे वो कंट्रीब्यूशन जो ये कर सकते हैं वो कर नहीं पाते। तो ये 4 बड़े टीनेट्स में मैं आपको आई थिंक एक्सप्लेन कर पाऊंगा बेटर कि कहाँ पे हमने वैल्यू देखी है इस सॉफ्टवेयर के होने से। तो सबसे पहले मैं उल्टा स्टार्ट करता हूँ, प्रोजेक्ट के अंदर विजिबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी से सेटअप करता हूँ। व्हेन वी स्टार्टेड दिस बिजनेस, सबसे पहले चैलेंज ये था कि व्हेन वी ग्रू टू अ स्केल की जहाँ पे 15-20 प्रोजेक्ट हमारे पैरेलल में चल रहे हैं, वहाँ पे एवरी डे देयर वुड एन एस्केलेशन फ्रॉम द क्लाइंट सेइंग कि आपके साइड पे काम अच्छे से नहीं हुआ, एंड व्हेन आई स्पीक विद माय प्रोजेक्ट टीम दे वुड से कि नहीं, काम तो बढ़िया चल रहा है, राइट। एंड दिस व्हाट क्लाइंट इज सेइंग एंड व्हाट माय टीम इज सेइंग इज नेवर मैचिंग, and when this does not match, escalation kind of flows to the top and I'm involved in every escalation, and those were the days जहाँ पे मैं एक्सेल शीट्स के ऊपर, you remember those days अर्पित, राइट, कि हम एक्सेल शीट के ऊपर सारे प्रोजेक्ट के ऊपर टीम के साथ में रिव्यू लिखते थे, कौन सा काम कब होने वाला है, राइट, एंड दोज थिंग्स वर नॉट हेल्पिंग। तो सबसे पहली जो चीज़ हमने आरडेस्ट की जो वैल्यू क्रिएट की, हमने साइट से ट्रांसपेरेंटली चल क्या रहा है ऑन अ डे टू डे बेसिस, वो फिक्स किया। आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट व्हेन वी गॉट थ्रू द सॉफ्टवेयर, जहाँ पे वी बिल्ड फीचर्स लाइक आपका बीओक्यू का स्कोप एक जगह पे आ जाएगा, उस स्कोप के अंदर रोज की डीपीआर आएगी। अब डीपीआर आप रेगुलरली लेते हो तो उसमें फिर वहाँ पे मिस रिपोर्टिंग होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि एक तो डीपीआर की पीडीएफ बहुत सारे लोगों को जा रही है, राइट, और वहाँ पे आप एक दिन बोल सकते हो कि ये काम ऐसे हुआ, लेकिन आप सीक्वेंस में झूठ नहीं बोल सकते। तो सीक्वेंस में आपको जब रोज डीपीआर भरनी है तो चांसेस है कि करेक्ट इन्फॉर्मेशन आएगी साइट से, और ग्राउंड टीम भी ज़्यादा अकाउंटेबल हो जाती है। तो दैट वाज फर्स्ट आई थिंक विन वी रियलाइज थ्रू आरडैश। सेकेंड विन वॉज अगेन जो मैं फाइनेंशियल कैश फ्लो प्लानिंग और उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब हमारे बिजनेस में क्या हो जाता है, व्हेन यू आर ऑन अ कॉन्ट्रैक्टिंग साइड और डिजाइन बिल्ड साइड, अब प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल तरह के कैश फ्लोज इन्वॉल्व हैं। आपने कुछ चीज़ें विद मटेरियल लेबर दे दिए हैं, कुछ कहीं पे आप मटेरियल अलग से खरीद रहे हो, लेबर अलग से एंगेज हो रही है, कुछ आपके रन टाइम चेंजेस आ गए क्लाइंट के स्कोप के मॉडिफिकेशन के हिसाब से, कुछ आपने अपने ग्राउंड टीम को कुछ पैसे दे दिए जहाँ से वो प्रोक्योरमेंट करके काम कर रहे हैं, कुछ रिम्बर्समेंट्स हैं, कुछ ट्रैवल स्पेंड है। तो मल्टीपल स्पेंड हेड्स हैं जो कि एक प्रोजेक्ट के अंदर आके लाई करते हैं। अब इन ये सारे के सारे स्पेंड हेड्स इन आवर इनिशियल ईआरपी दैट वी आर यूजिंग टैली एंड वी आर यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ टैली एंड सम अदर ईआरपीज, राइट, उस पे ये सारे के सारे कॉस्ट हेड अलग अलग जगह पे लिखे हुए हैं। और प्रोजेक्ट को रिकनसाइल करना इतना ट्रिकी जॉब था कि प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद में एवरीबडी हैव टू कम एंड सिट इन द ऑफिस, एंड 7 दिन लगते थे उसको रिकनसाइल करने में कि प्रोजेक्ट में एक्चुअल में पैसा कितना बना, और उसके बाद में 3 महीने बाद कोई बिल आ जाएगा कि ये बिल पहले से अप्रूव नहीं थे। तो वहाँ पे हम जो प्रोजेक्ट के अंदर फाइनेंशियल कंट्रोल नहीं एस्टैब्लिश कर पा रहे थे, वो हमने आई थिंक आरडैश के थ्रू सॉल्व किया, जहाँ पे वी बिल्ड फीचर्स लाइक कि हमने ऑर्डर्स मॉड्यूल के अंदर हमने अप्रूवल हायरार्की सेटअप की कि जो भी प्रोक्योरमेंट हो रही है वो किसी न किसी पे अप्रूवल पे जा रही है। साइट रिम्बर्समेंट वगैरह के अंदर हमने ऐप से फ्लो बिल्ड किए, राइट। हमने प्रोक्योरमेंट जो सप्लायर की इनवॉइसिंग और ये सब जो हैंडलिंग है उनको आरडैश पे चढ़ाने का फ्लो क्रिएट किया कि जो भी परचेज ऑर्डर या इनवॉइस निकल रहा है वो आरडैश के थ्रू हम लेंगे,
ताकि वो एक Yes. जॉब आईडी से टाई हो जाए. एवरी कॉस्ट एक्सपेंस इज काइंड ऑफ रूटेड इनटू द सिस्टम थ्रू आरडैश, ताकि एटलीस्ट थ्रू आरडैश डेटा आई कैन फिगर आउट कि मेरा इस प्रोजेक्ट पे ऊपर क्या रेवेन्यू एंड एक्सपेंस है. एंड देन वी बिल्ड फीचर्स लाइक कि बीओक्यू के अंदर हम रेवेन्यू कंट्रोल कर पाएं, कस्टमर से अप्रूवल ले पाएं. तो वहां से हमने आई थिंक फाइनेंशियल कंट्रोल को सॉर्ट आउट किया. क्लाइंट रिपोर्टिंग, क्लाइंट एक्सपीरियंस हैज बीन अ बिग पार्ट, की जो भी डीपीआर आ रही है, कस्टमर को रोज प्रॉब्लम होती है कि आपने उसने अवार्ड तो दे दिया, लेकिन पहले 10-15 दिन कस्टमर बहुत जिटरी रहता था कि आपने काम दे दिया, आप काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे. कस्टमर वांट्स टू नो एंड लॉट ऑफ दीज थिंग्स. तो वहां पे डीपीआर ऑटोमेटिकली कस्टमर को व्हाट्सएप पे चली जाती है, तो कस्टमर फील लॉट मोर कॉन्फिडेंट. रिसेंट एक केस था, वी वर सिटिंग विद द कस्टमर, उन्होंने बोला था हमें कि एक प्रोजेक्ट देंगे, उसके बाद आप अच्छा करोगे तो हम आपको आगे प्रोजेक्ट देंगे. अब मैंने क्या किया कि कस्टमर्स की मीटिंग में जाने से पहले मैंने टीम को बोला कि आप इनकी डीपीआर में इनको रिसिपिएंट कॉन्फ़िगर कर दो. तो नेक्स्ट डे व्हेन वी वेंट टू मीट दैट कस्टमर, अब उनको डीपीआर मिली हुई थी एंड आधे घंटे तक हमने डीपीआर में बात की. ही वाज सो अमेज्ड कि आपकी डीपीआर कैसे आ रही है, अच्छा इतनी मैन पावर आ रही है. वी टॉक्ड ऑन दोज एस्पेक्ट्स. उसकी टीम से दूसरे लोग इन्वॉल्व हो गए, उन सब ने बोला कि हमें भी डीपीआर में कॉन्फ़िगर करो एंड वी वांट 2 मोर प्रोजेक्ट्स. तो जो प्रोजेक्ट्स अगला फार्म होने में मेरे को 30 दिन लगते, 40 दिन लगते, वो मेरा डे 1 पे फार्म हो गया. तो उस तरह से क्लाइंट रिलेशनशिप में भी हमने जो ये वाला जो लीवर है, इसमें भी आई थिंक हमारे पास में एक विन है. और प्रोक्योरमेंट के अराउंड तो ओवरऑल जो हमने प्रोक्योरमेंट में वर्कफ्लोज बनाए हैं कि काफ़ी सारी ट्रांसपेरेंसी रहती है कि आपने क्या क्या आइटम किसको प्रोक्योर किया है, कौन कौन से सप्लायर को एंगेज किया है. वो रिस्पॉन्स पहले जब टीम प्रोक्योर करती थी तो इतने सारे काम में व्यू नहीं रहता है, मिलता नहीं, पता नहीं चलता कि किस सप्लायर को किस रेट में क्या चीज़ भेज रहे हो. तो इवन फॉर फाउंडर्स, मतलब मेरे लिए भी काफ़ी डिफिकल्ट था कि एक एक प्रोजेक्ट में खोदना, क्योंकि जब आपके दिमाग में आता है ये देखूं, उस टाइम पे एक ब्लॉकर आ जाता है, या उसको पूछना पड़ेगा, उसको मेल करना पड़ेगा, फिर वो बंदा बताएगा, वो इन्फॉर्मेशन भी एकदम से पहुंचेगी नहीं, तो रिव्यू हो नहीं पाते हैं. जब सब कुछ मेरी ऐप पे अवेलेबल है, मैं कभी भी प्रोक्योरमेंट रिव्यू कर पाता हूँ, स्मॉल टारगेट दे पाता हूँ टीम को कि इसको इस प्राइस पे करना है, इसमें इस सप्लाई को डेवलप करना है. तो वो एक जो न जाता है ऊपर से टॉप डाउन जो न जाता है, उसमें धीरे धीरे वो कल्चर बन जाता है कि यार समबडी इज रिव्यूइंग ऑल द कॉस्ट. तो धीरे धीरे वो एक एक्सीलेंस आ जाती है प्रोक्योरमेंट में. तो चारों टेनेट्स में मुझे लगता है कि आरडैश से हम लोगों को काफ़ी हेल्प हुई. जिस एरिया में हम लोग अभी भी इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू आरडैश, जो हमारे लिए अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है, कि हमारी डिलीवरी टाइम से कैसे होंगी. ये सोल्यूशन हमें आरडैश दे पाए, वो नहीं दे पा रहे अभी भी. लेट्स सी वहाँ पे हम कहाँ तक पहुँचते हैं. आई थिंक यही लर्निंग से ही हम लोग और ड्राइव करते जा रहे हैं कि हम किस तरीके से और ग्रोथ फीचर्स बनाते जाएं और चीज़ों को बेटर कर पाएं. तो आई थिंक दैट्स रियली, आई थिंक जिस तरीके से आपने बताया. बट इससे एक इंटरेस्टिंग चीज़ पूछने का सवाल आया है मेरे दिमाग में, अमित, कि आपने बोला कि आपका पहले बहुत टाइम इन चीज़ों में जाता था. तो अब अगर मैं थोड़ा एस्टिमेट पूछूं एज अ फाउंडर, आई थिंक देयर आर मेनी फाउंडर्स हेयर, मेनी सीनियर मैनेजमेंट पीपल हेयर, कि कितना टाइम सेव हो पाया. मतलब आफ्टर डिप्लॉइंग आरडैश आपका एक टाइम जो आपको लगता था कि ये एक डेड टाइम है मेरे लिए, कि यार ये बहुत वेस्ट हो रहा था, अब मैं उसको, मतलब कितना वो आपका, अगर आप किसी वैल्यू में क्रिएट करके बता पाओ, परसेंटेज में बता पाओ. आरडैश ने जहाँ पे हम मेरे को हेल्प किया टाइम बचाने में, वो मेजरली कि मैं हमारी टीम में बहुत सारे लीडर्स बना पाया. कि नाउ देयर इज अ प्रोक्योरमेंट लीडर के पास में पूरे इंडिया में जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं पूरे का कंट्रोल है. रेट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उस रेट कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से प्रोक्योरमेंट हो जा रहा है. हर एक प्रोक्योरमेंट ऑर्डर्स के दौरान रिव्यू है. अप्रूवल साइकिल के जो इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स हैं वहाँ पे प्रोक्योरमेंट हेड ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो जा रहा है. तो प्रोक्योरमेंट हेड को हमने उस तरह से एम्पावर कर दिया कि भाई नाउ दिस गाय हैज सिग्निफिकेंट कंट्रोल. इसी तरह से प्रोजेक्ट लीड्स को उस तरह से एम्पावर कर दिया. तो आरडैश हैज क्रिएटेड वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड टाइम सेविंग फॉर अस इन अ वे कि जहाँ पे मैं अपने L1s को, डाउनलाइन टीम को एम्पावर कर पाया कि you have now a view of all the decisions which are being taken by you or your team in your sphere. And that eventually gravitated into a lot more ownership and accountability in the downline team. And that ownership and accountability eventually led to cost and time saving for us. जो stipulated impact हमने सोचा था कि आरडैश और जो भी सिस्टम हम बना रहे हैं कि जो एफिशिएंसी हम टारगेट करेंगे कि एक बेंचमार्क प्राइस पॉइंट पे जो टिपिकल एक कंस्ट्रक्शन कंपनी, डिजाइन बिल्ड कंपनी जो एक प्रोजेक्ट डिलीवर कर पाती है थ्रू आरडैश एंड हैविंग द राइट टीम स्ट्रक्चर अराउंड इट, अ कंपनी शुड बी एबल टू सेव 10% ऑफ द कॉस्ट एंड 20% ऑफ द टाइम डिले. दैट्स द हाइपोथेसिस. इसको एग्जैक्टली मेजर करके वर्ड्स में बता पाना मुश्किल है एंड आई एम नॉट 100% श्योर कि वी हैव अचीव्ड टू दैट एक्सटेंट और नॉट, बट आई एम प्रीटी श्योर दैट वी हैव मेड अ सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन दैट डायरेक्शन. सही है, समझ गए. तो अमित, थोड़ा सा अब एक लेवल डीप जाना चाहूँगा मैं, जहाँ पे आई थिंक सब लोग का ये डाउट भी रहता है कि इस इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से अडॉप्ट हो पाएगी कि नहीं.
ठीक है, या इसमें अडॉप्शन में कितने चैलेंजेस आएंगे, कैसे रहेगा। तो आपने जितनी वैल्यूज अभी बताई कि ये चीज़ आपने अचीव करी, एक जर्नी थी आपकी जो वैल्यूज क्लाइंट के लिए आपने जनरेट करी, ये सारी चीज़ें, प्रोक्योरमेंट एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी, देन क्लाइंट को एनपीएस इंक्रीज हुआ, रिपीटेड बिजनेस आने लगा। बट हाउ डिफिकल्ट वॉज इट फॉर यू, और हाउ प्रैक्टिकली आपने इसको अपनी टीम में कैसे डिप्लॉय किया, मतलब व्हाट वर द एक्शंस, थोड़ा लोगों को प्रैक्टिकली अगर हम बता पाए तो आई थिंक वुड बी वेरी ग्रेट। ठीक है, सो अर्पित, ये आई थिंक दैट्स द मेन टॉपिक ऑफ द डिस्कशन एज वेल। सबसे पहला जो स्टार्ट हुआ डिप्लॉयमेंट के अंदर, वो एक खुद के माइंडसेट के बदलाव से स्टार्ट हुआ। जब इनिशियली हम काम कर रहे थे इन ए सेटअप विच इज अ लिटिल ग्रे और चीजें मिक्स एंड मैच चल रही हैं, वहां पे क्या हो रहा था कि सारा का सारा कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग हमारे ऊपर के, मेरे पास में और एक दो और लोगों के पास में थी। एंड इट अलाउड अस अ लॉट ऑफ रूम टू प्ले कि कस्टमर से पैसा नहीं आया तो मैं सप्लायर का पैसा डिले कर दूंगा, कुछ ना कुछ चीजें बोल करके आप थोड़ा सा पेमेंट डिले कर सकते हो, राइट। तो उस मतलब जनरली इनिशियल माइंडसेट व्हेन आई केम इनटू दिस इंडस्ट्री, बिकॉज देयर आर सो मेनी मूविंग पार्ट्स, आई वांटेड टू कंट्रोल एवरीथिंग। क्योंकि मुझे लगता था कि जब मैं ये कंट्रोल करूंगा हर चीज को, तो मैं ज्यादा एफिशिएंटली बिजनेस रन कर पाऊंगा। अगर मैं सप्लायर के बिल टाइम से लेकर के उनको लॉक कर लूंगा, तो फिर सप्लायर भी मेरे पीछे पड़ेंगे कि मेरे को उनको टाइम से पे करना है, राइट। दैट्स अ टिपिकल माइंडसेट आई स्टार्टेड दिस कंपनी विद, कि इनिशियल मतलब ऐसे ही शायद इंडस्ट्री का शेप एंड फॉर्म ही ऐसा है कि वो ऑटोमेटिकली ये माइंडसेट सीप हो गया, राइट। फॉर द फर्स्ट ईयर इट वाज लाइक दैट, और हम उस टाइम पे सॉफ्टवेयर बना रहे थे, मल्टीपल और चीजें कर रहे थे। जब आरडैश एक स्टेबल फॉर्म में आ गया था, इट वाज अक्टूबर 2022, जब आरडैश एक स्टेबल फॉर्म में आ गया था और हम सोचे थे डिप्लॉय करना है, तो सबसे पहला डिसीजन तो खुद के साथ था कि भाई इस बिजनेस को बिल्कुल हाइजीनिक तरीके से चलाना है मेरे को। और मैंने अपने आप को ये कहा कि अगर ये हाइजीनिक तरीके से बिजनेस बन सकता होगा तो हम ये बिजनेस बनाएंगे, वरना हम कुछ और कर लेंगे लाइफ में, राइट। तो मतलब देखी जाएगी सोच के करने वाले एटीट्यूड से, थोड़ा सा अनश्योर एटीट्यूड से, हमने कहा था कि लेट्स गो इन ए डायरेक्शन जहां पे लेट्स मेक एवरीथिंग ट्रांसपेरेंट एंड सब कुछ, क्योंकि स्केल तभी हो सकता है कि व्हेन थिंग्स आर ट्रांसपेरेंट एंड स्ट्रक्चर्ड, अदरवाइज तो स्केल हो नहीं सकता। और छोटे स्केल पे बिजनेस करके वहीं पे रहना लाइफ टाइम, वो एस्पिरेशन थी नहीं। तो सबसे पहला डिसीजन ये था कि यार बिजनेस करना तो स्केल पे करना है, उसके लिए स्ट्रक्चर एंड ट्रांसपेरेंसी लाएंगे। जब वो डिसीजन ले लिया कि भाई अब स्ट्रक्चर एंड ट्रांसपेरेंसी लानी है, तो एक माइंड में ऐसा है कि जो भी होगा आगे पीछे होगा, देखा जाएगा। उस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया। वो कैसे पैन आउट हुआ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो भी मैं हाईलाइट करूंगा कि वो थोड़ा सा थॉट काउंटर इंट्यूटिव था स्टार्टिंग में, बट इट पैन आउट इन अ वेरी डिफरेंट वे। तो सबसे पहली चीज हमने जो करी थी 91 में, इनिशियली हम लोगों ने कैटलॉग फीचर बनाए थे। कैटलॉग के ऊपर रेट कॉन्ट्रैक्ट करके हमने सोचा था कि कैटलॉग बना लेंगे, उसके ऊपर रेट कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे और सारी की सारी प्रोक्योरमेंट रेट कॉन्ट्रैक्ट पे होगी, हमारा बिजनेस एकदम सॉल्व हो जाएगा, सप्लाई चेन डिजिटाइज हो जाएगी एंड वी विल स्केल दिस। हमने वो चीज़ अटेम्प्ट की, वो नहीं हुआ, राइट। हमने ट्राई किया, 3-4 महीने वेस्ट किए, ना तो अडॉप्शन आया, ना हमारी टीम यूज़ कर रही थी, हम सबको कह रहे थे, इट वॉज जस्ट नॉट हैपनिंग। हमने जो फर्स्ट विन हमें मिला अडॉप्शन के अराउंड, मैं एक सिंपल एक्सरसाइज करता था। मैंने टीम को कहा एवरी फ्राइडे 3:30 से 4 मैं आधे घंटे पूरी की पूरी प्रोजेक्ट टीम को एक कॉल पे लाता था। मैं कहता था कि यार जो भी बीओक्यू बने हुए हैं अपने, जो भी रनिंग प्रोजेक्ट्स हैं, उसकी मेरे को डीपीआर चाहिए, जो भी बंदा साइट पे सुपरवाइज कर रहा है, साइट पे डिप्लॉयड है उससे, राइट। और जिसकी भी डीपीआर नहीं आई, मैं उसका नाम लिख लेता था अपने एक डॉक्यूमेंट में। ये एक्टिविटी मैंने पहले आई थिंक 4 या 5 वीक की एक्टिविटी करी, आधे आधे घंटे की। उसके बाद से ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया, हमारे हर प्रोजेक्ट पे डेली अपडेट आती है, राइट। क्योंकि वहां पे शायद थोड़ा सा थ्रेट या थोड़ा सा रिस्क क्रिएट करना शायद जरूरी था, क्योंकि टीम को क्या, प्रोजेक्ट टीम को ग्राउंड से लगता है कि यार क्या काम डीपीआर भरने से काम थोड़ी ना हो रहा है, काम तो काम करने से हो रहा है। जब मैं काम कर रहा हूं तो आप मेरे से फालतू चीजें क्यों मांग रहे हो? इट जस्ट यू आर जस्ट क्रिएटिंग एक्स्ट्रा स्टेप फॉर मी, राइट। बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि इफ द मैनेजमेंट एंड लीडरशिप इज ब्लाइंड, दे कांट डू मैक्रो प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर देम इन देयर प्रोजेक्ट इज वेल। तो उस लेंस से डीपीआर भरना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता था। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा एक तरह से कह लो कि अनसेट सा थ्रेट इन्वॉल्व था कि आपने डीपीआर नहीं भरी तो इट्स अ प्रॉब्लम फॉर मी। और डीपीआर भरने के लिए बीओक्यू सारे इन प्लेस होने चाहिए। तो सबसे पहले सारे बीओक्यूज को आरडैश पे अपडेट करने में एफर्ट मारा और डीपीआर के अराउंड फॉलोअप किया, उससे डीपीआर आनी स्टार्ट हो गई। डीपीआर आनी तो स्टार्ट हो गई, राइट। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जो कैश फ्लो के अराउंड जो बाकी सारी चीजें थी कि ऑर्डर आरडैश के थ्रू निकले, इनवॉइस आरडैश पे चढ़े, वेंडर का परचेज ऑर्डर आरडैश के निकले, बाकी सारे के कॉस्ट हेड जो हमारा जो सेकंड फेज था कि जहाँ पे मैं मार्जिन को कंस्टेंट मार्जिन के अराउंड क्लियर विजिबिलिटी चाहता था, वो नहीं हो रहा था। और वहाँ पे, और वो नहीं होने का रीजन शायद ये भी था कि
हम प्रोजेक्ट टीम को कह रहे हैं, प्रोक्योरमेंट टीम को कह रहे हैं कि यार तुम यहाँ से ऑर्डर निकालो। अब प्रोक्योरमेंट टीम सारे ऑर्डर्स निकाल नहीं रही है, कुछ ऑर्डर प्रोजेक्ट निकाल रहा है, राइट। कुछ इनवॉइस, कुछ सप्लायर इनवॉइस प्रोजेक्ट कलेक्ट कर रहा है, कुछ सप्लायर इनवॉइस प्रोजेक्ट प्रोक्योरमेंट टीम कलेक्ट कर रही है, कुछ एडॉक पेमेंट हो जा रही है। तो मल्टीपल लोग काम कर रहे हैं एक मॉड्यूल के अंदर। जब एक मॉड्यूल के अंदर मल्टीपल लोग काम करते हैं ना, तो अब मल्टीपल लोगों को समझा करके अडॉप्शन ला पाओ, ऐसा होता ही नहीं है। तो आई थिंक वहां पे जो की इनसाइट हमें मिली, जो सबसे बड़ी इनसाइट थी, हमने अपनी फाइनेंस टीम को ओनर बना दिया आरडीएस डिप्लॉयमेंट का। हमने फाइनेंस टीम को सिंपल है कहा, कोई भी सप्लायर इनवॉइस एक्सेप्ट नहीं हो सकता जब तक उसकी आरडैश पे ऑर्डर क्वांटिटी और सप्लायर ने जो इनवॉइस डाला उसकी क्वांटिटी मैच नहीं होती। उससे पहले एक्सेप्ट ही नहीं होगा, राइट। या तो आपके आरडैश की क्वांटिटी अपडेट कर लो सप्लायर के इनवॉइस के हिसाब से, या फिर सप्लायर का इनवॉइस चेंज करवा लो आरडैश की क्वांटिटी के हिसाब से, तभी जाकर के फाइनेंस टीम उस इनवॉइस को फाइनल ईआरपी में पंच करेगी, वरना वो इनवॉइस को रिजेक्ट कर देगी। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा हिकअप आया, थोड़े से पेमेंट डिले हुए, थोड़े से प्रोजेक्ट में इश्यूज आए, मेरे पास में एस्केलेशन आए कि सर ये काम नहीं हुआ। मैं क्यों काम नहीं हुआ? कि सर वो पीओ नहीं निकला, इनवॉइस उसका सप्लायर का एक्सेप्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं एक्सेप्ट हुआ था? सर उसने फाइनेंस टीम ने मना कर दिया क्योंकि आरडीएस की वजह से कुछ ब्लॉकर आ गया, राइट। बट देन वी केप्ट पुशिंग कि आरडीएस की तरफ से ब्लॉकर नहीं आया, जस्ट हैव टू फॉलो द प्रोसेस। आप जाकर के एक बार रिकनसाइल करके डाल दो। मैं टीम को कहता था कि तुम इसको अभी के अभी इसको आरडीएस के ऑर्डर से रिकनसाइल करके डाल दो, मैं अभी के अभी इनवॉइस पंच करवा के कल पेमेंट करा दूंगा। तो मतलब इनिशियली मेरे को इन्वॉल्व होना पड़ा पहले 2-3 महीने, बट उससे क्या होगा कि फाइनेंस टीम एक तरह से प्लग बन गई कि अब हर एक प्रोजेक्ट टीम को, साइट टीम को, प्रोक्योरमेंट टीम को जो भी इनवॉइस एक्सेप्ट कर रहा है उसको ये देखना है कि मैं जो भी इनवॉइस एक्सेप्ट कर रहा हूँ उसकी क्वांटिटी ऑर्डर से मैच करनी चाहिए, राइट। तो उसका अडॉप्शन आने लग गया और उसका फायदा मेरे को ऐसे हुआ क्योंकि आरडैश के ऊपर मेरे पास में लाइन आइटम लेवल पे बीओक्यू की क्वांटिटीज, रेट, सारी चीजें हैं। ऑर्डर के अंदर भी मेरे पास में फिर करेक्ट डेटा आ रहा है जो मैं इनवॉइस एक्सेप्ट कर रहा हूँ क्वांटिटी के हिसाब से। अब मेरे को दुनिया भर का एनालिसिस मिलने लग गया कि कौन से सप्लायर के साथ मैं काम कर रहा हूँ तो मैं कितना % मार्जिन बना रहा हूँ, कैटेगरी लेवल पे कितना % मार्जिन बना रहा हूँ, कौन से आइटम से उसमें मार्जिन लूज कर रहा हूँ, राइट। अगर किसी ऑर्डर का बिल आ चुका है मेरे पास में, क्वांटिटी अपडेटेड है, उसका कितना बिल आना पेंडिंग है, तो मैं टाइमली रिकनसाइल कर पा रहा हूँ अपने प्रोजेक्ट। तो फिर जो जितने भी रिकनसिलिएशन रिलेटेड जो भी एडवांटेज थी फिर वो वहां से फ्लो करने लगी। उसके बाद में ये 2 बड़े लीवर किए, डीपीआर और आई थिंक ऑर्डर के अराउंड, और अप्रूवल फ्लो सेटअप किया। उसके बाद तो आई थिंक बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ा। उसके बाद में टीम गेट्स द फ्लेवर एंड देन दे काइंड ऑफ कैरी अलोंग। अंडरस्टूड। तो अमित, जैसे हम लोग भी एक कंपनी में हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है, एक मतलब एक मिड मैनेजमेंट होता है, सीनियर मैनेजमेंट होता है, फिर एक मतलब जो लोग प्रोजेक्ट मैनेजर्स, प्रोजेक्ट इंजीनियर, साइट सुपरवाइजर्स हैं, साइट पे जा रहे हैं। तो हाउ डू यू थिंक अडॉप्शन आपने हर लेवल पे ट्राई किया लाने का, कि सबके लिए अलग वैल्यू दिखाई, अलग तरीके से किया, या फिर बॉटम टू टॉप अपने आप आने लगा, या टॉप टू बॉटम ही गया? थोड़ा वो आप थोड़ा फ्लेवर और लोगों को बताएंगे तो वुड बी। आई थिंक अर्पित अ लॉट ऑफ एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए कि अगर कोई भी बंदा 91 स्क्वायर फीट वाज अ न्यू कंपनी, कोई अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर क्यों ज्वाइन करेगा 91 स्क्वायर फीट को? देयर आर हंड्रेड्स ऑफ अदर कंपनी। एक तो अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर्स मिलते नहीं हैं, मिलते हैं तो अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर के पास में दुनिया भर की चॉइसेस होती है, मतलब ग्रोन अप सेटअप में जाने का और दुनिया भर की चीज़ें करने का। तो आई थिंक वी कुड अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ पीपल इन द बिगिनिंग, टेलिंग देम कि भाई हम लोग स्केल करेंगे, बड़ी कंपनी बनाएंगे, तेजी से कंपनी ग्रो होगी, और तेजी से कंपनी ग्रो होगी तो सबका रोल एक्सपैंड होगा। और जो चीज़ आपको एक बड़ी कंपनी में जाके 10 साल में, 20 साल में सीखने को मिलेगी, जितने बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप 10 साल में वहाँ पे जाके कैरी करोगे, अगर आप हमारे साथ में काम करोगे तो अगले 2-3 साल में हम इतना ग्रो करेंगे कि आप हमारे साथ में बड़े काम कर पाओगे। तो दैट बिकम्स अ कॉमन बाइंडिंग फैक्टर फॉर एवरीबडी टू बी अलाइंड विद द विजन, कि जो भी बंदा यहाँ पे काम कर रहा है वो एक तरह से रैपिड करियर प्रोग्रेशन की वजह से काम कर रहा है, कि उसको वो चीज़ दिखती है। तो व्हेन वी इंट्रोड्यूस टेक्नोलॉजी, दिस इज लाइक लाइंग वेरी वेल विद कि भाई हम लोगों को ग्रो करना है और ग्रो करने में टेक्नोलॉजी हम हेल्प करेगी। इसको एक थोड़ा सा गेम जैसा बना लेते हैं, रोल प्ले जैसा बना लेते हैं। अभी जज नहीं करते हैं प्रोसेस को कि कितना वैल्यू निकल रहा है, इससे क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है। लेट्स ऑल फॉलो द प्रोसेस, ताकि एक बार सारे लोग फॉलो करेंगे प्रोसेस को तो सबको एक दूसरे के काम की कॉमन अंडरस्टैंडिंग होगी, डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होगी। उस तरीके से स्टार्ट हुआ। लेकिन ये है एक मैक्रो अंडरस्टैंडिंग कि जो हम टाउन हॉल्स के थ्रू या फिर पूरी ऑल कंपनी हैंड्स मीट के थ्रू लोगों में परकोलेट कराते थे कि दिस इज अ इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर फॉर अस। हमें अगर अपना बिजनेस स्केल के लिए सेटअप करना है तो वी हैव टू डू इट नाउ, वी हैव टू डू थिंग्स इन अ राइट वे। बट लोग सुनते हैं और भूल जाते हैं। टिपिकली ये है कि जब व्हेन द पुश कम टू शव डे टू डे बेसिस के अंदर, तो सारी चीज़ें छोड़ के काम कराना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वहाँ पे मेरी भी कभी कभी प्रायोरिटी शिफ्ट हो जाती है, टीम की प्रायोरिटी शिफ्ट हो जाती है, तो सारे लेवल पे अडॉप्शन ड्राइव करना मुश्किल होता है। मैंने सिंपल वही है कि 2-3 प्लग बनाए कि भाई ये जो कोर टीम्स हैं,
फाइनेंस टीम जो है मेरा यहाँ पे प्लग करेगी और प्रोजेक्ट टीम डीपीआर देगी। दैट वाज माय इनिशियल लेवर। और मैं टॉप डाउन गया, मेरे जो L1s थे मैंने उनको रिस्पॉन्सिबल बनाया। मैं एक मोमेंट के बाद में मैंने डाउनलाइन टीम का रिव्यू बंद कर दिया कि वो बंदा R-डैश यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर मेरा हेड ऑफ ऑपरेशंस अलाइन नहीं है सॉफ्टवेयर से तो मैं कितना काम कर लूंगा? एट द एंड ऑफ द डे काम हेड ऑफ ऑपरेशंस को कराना है। तो डाउनलाइन टीम फ्रंट एंड टीम को डे टू डे बेसिस पे अडॉप्शन पे रिव्यू करना आई डोंट थिंक इज मच हेल्प। व्हाट इज हेल्पफुल इज कि अगर कोई भी कंपनी में आप अपना टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हो तो जो की लीडर्स हैं आपके, उनका अलाइनमेंट होना, उनका बाइन होना और उनके साथ में रिव्यू ड्राइव करना, क्योंकि उनके अलाइनमेंट के बावजूद भी उनका डे टू डे काम इतना ज्यादा फैल जाता है कि वो ये चीज नहीं कर पाएंगे। तो यू हैव टू काइंड ऑफ ब्रिंग देम बैक टू द सेम पॉइंट एवरी वीक और 2 वीक, और 3-4 वीक, 1-2 महीना आप ये लगातार रिव्यू करोगे तो फिर वो जाके प्रोसेस अडॉप्ट होता है। तो मैं टॉप डाउन गया और मैंने कुछ लोगों के थ्रू कुछ लोगों को अकाउंटेबल बनाया कि आपके अंडर जो भी काम हो रहा है वो इस तरह से होना चाहिए। गॉट इट। नहीं, सही है। आई थिंक जो आप कह रहे हैं, मैंने भी बाकी कंपनीज में जैसे हम लोग देखते हैं, हम अडॉप्शन करते हैं, हम उनको भी यही सजेशन मतलब हम लोग भी देते हैं। एंड आई थिंक टॉप टू बॉटम एक मोमेंट के बाद बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वहाँ से सब लाइन होते चले जाते हैं एंड बॉटम टू टॉप में एक बार फीडबैक आने लगता है तो सब फिर सेट हो जाता है, तो विच इज़ वेरी गुड। एक और सवाल आ रहा है मतलब अमित, जैसे एक होता है अपनी टीम का परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करना, ठीक है, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक अच्छी टीम बनाना, ठीक है। अगर अच्छी टीम है तो हम मतलब कुछ भी मतलब दैट्स अ रेडीनेस फॉर गोइंग ऑन एनी मिशन, है ना। तो डू यू थिंक R-डैश प्लेड एनी वाइटल रोल इन क्रिएट और हेल्पिंग यू इन इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस ऑफ योर सबऑर्डिनेट्स, या पूरी टीम का परफॉर्मेंस वैल्यूएशन कोई एक तरीके से काउंट टॉप आ पाया, या आपको हेल्प मिली उस चीज़ से, और टैलेंट एक्विजिशन में भी हेल्प आई उस वजह से? यस अर्पित, सो मतलब ये तो है ही चैलेंज कि लेट्स से अपने टीम में इस मोमेंट पे जो साइट सुपरविजन इंजीनियर लेवल पे देयर विल बी एटलीस्ट 40-45 पीपल एंड देन देयर विल बी ऑलमोस्ट 10-12-15 पीपल एट द प्रोजेक्ट मैनेजर एंड लीड लेवल, राइट। नाउ हाउ डू यू, अब कोई एक इंजीनियर, नया इंजीनियर आपकी कंपनी में ज्वाइन करता है, लेट्स से 91 में या किसी भी कंपनी में ज्वाइन करता है। अब वो बंदा, उस बंदे को अगर आप एक फेयर ऑनेस्ट करियर पाथ दे पाते हो, राइट, वो बंदा सीखेगा। आप लो बजट में एंट्री फ्रेशर बंदों को हायर करोगे, धीरे धीरे 1-2 साल में सीख जाएगा। जब वो सीख जाएगा, राइट, शुरू के 1-2 साल साइट पे रहेगा, सीख जाएगा, उसके बाद आप उसको कितना लंबा रिटेन कर पाते हो, राइट। उसके बाद कैन यू, इफ यू आर एबल टू रिटेन अ ट्रेन्ड होम ग्रोन टैलेंटेड गाय फॉर लेट्स से 5 years or 10 years, that defines how big a company will make. That's the thing. Like if you look at average tenure of people who works at L&T, average tenure is north of 7 or 8 years. Like आप किसी भी L&T के सीनियर बंदे का प्रोफाइल लेके देखोगे, they would have worked with the company 13 साल, 15 साल, 20 साल, राइट। तो ये तो क्योंकि पूरी की पूरी इंडस्ट्री पीपल सेंट्रिक है, तो अच्छे लोगों को सही तरीके से रिवॉर्ड करना, उनको रिटेन करना, उनको मोटिवेट करना गोज अ लॉन्ग वे विदाउट सेइंग। शुरू में जब आपके 10-15-20 लोग होते हैं, एवरीबडी इज क्लोज टू यू, यू आर टॉकिंग टू एवरीवन, राइट, तो ये चीज़ थोड़ा इजी होती है। बट व्हेन जब स्किप लेवल रिपोर्टिंग बनने लगती है कि आप हो, आपके नीचे कोई मैनेजर है, उसके नीचे 1-2 और लेवल है, तो यू स्टॉप हैविंग ए व्यू ऑफ द टीम विच इज वर्किंग ऑन द ग्राउंड। जो सबसे ज्यादा हैवी लिफ्टिंग कर रही है आपके काम में, उसके काम में आपको अंदाजा ही नहीं है कि वो क्या काम कर रहे हैं। तो वहां पे आई थिंक काफी बड़ा मैं बोलूंगा कि यहाँ पे यस, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एरिया की जहाँ पे काफ़ी बड़ा वैल्यू एडिशन है कि काफ़ी क्लियर डेटा अवेलेबल है अपने पास में। जो भी हमारे इंजीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रहे हैं कि उन्होंने कितने प्रोजेक्ट किए, उनके प्रोजेक्ट में क्या परफॉर्मेंस रहती है, उनका डीपीआर वगैरह रिव्यू करके उनके काम का काफ़ी पता चल जाता है। उनके प्रोजेक्ट में, एक प्रोजेक्ट के अंदर अगर टाइमलाइन 3 बार डिले हो गई तो ठीक है, कस्टमर को एक्सेप्ट हो जाता है। एक प्रोजेक्ट में टाइमलाइन अगर 15 बार डिले हो गई, राइट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो प्रोजेक्ट इंजीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर है, ही इज नॉट एबल टू प्लान अहेड, एटलीस्ट एट द करंट लेवल ऑफ कैपेबिलिटी, ही इज नॉट एबल टू सी अहेड। तो ये सारा डेटा एक्सेल शीट वगैरह पे मिलता ही नहीं है, राइट। यू कांट हैव कि इस प्रोजेक्ट की टाइमलाइन में इस क्लाइंट एक्सपीरियंस किस चीज से डिफाइन होता है, कितनी बार आपने टाइमलाइन मूव करी, राइट। अब ये डेटा मेरे पास में है ही नहीं। जो सबसे बहुत ही बेसिक फाउंडेशनल जो इंफॉर्मेशन जो चाहिए ना एक बंदे को रिव्यू करने में, वो इन्फॉर्मेशन आप साल भर में बंदे को रिव्यू करते हो, उसने नवंबर-दिसंबर में जो काम किया है, राइट। और जो बंदे आपसे क्लोज हैं, जो बंदे आपसे ज्यादातर बातें कर रहे हैं, वो बंदे कभी कभी शैडो भी कर लेते हैं बाकी के लोगों का काम। उससे क्या है कि एक मेरिटोक्रेसी का कल्चर जो है वो हैम्पर होता है। तो ये सॉफ्टवेयर और ये ट्रांसपेरेंसी लाने से इट डेफिनेटली हेल्प्स।
to promote the right guys, and when you make the right choice around giving reward to the right side of people, तो बाकी जो right side of people हैं, they also get motivated कि भाई हम बढ़िया काम करेंगे तो somebody is looking at work and will be rewarded. तो वो वहाँ से टेंशन बढ़ता है. Yes. एंड अमित, जैसे आपने डेटा की बात करी, आई थिंक इस इंडस्ट्री में मतलब बीइंग आई माई सेल्फ 10+ years हो गए, डेटा एक जगह पे सही तरीके से आ जाना, उससे चीज़ें होना, ये एक हमेशा चैलेंज रहा ही है. बट डू यू थिंक कि मतलब एक डिसीजन मेकिंग, डेटा पैरामीटर्स, एक परफॉर्मेंस एक चीज़ हो गया, बट एक कंपनी को रन करने के लिए एज अ कैप्टन देयर आर मल्टीपल डिसीजंस नीड टू बी टेकन. सो after adopting to Rdash, you got a lot of data sets. I got many requests from you, ऐसा dashboards चाहिए, ये data cut चाहिए, ऐसा चाहिए. But did this data help you, मतलब in like, or it helps you to carve out the path for the company for future? मतलब आप कैसे यूज करते हो उस डेटा को, मतलब क्या देखते हो आप? तो अरे चेंज हुआ है मेरा मेथड बहुत ज्यादा. जब ये सॉफ्टवेयर आया था तो मेरे को ऐसा लगता था कि भाई मैं डैशबोर्ड बना दूंगा, राइट जो भी काम आएगा मेरे डैशबोर्ड पे आएगा, और मैंने कितने सारे डैशबोर्ड बनवाए हैं आप लोगों से, और अब मैं एक भी डैशबोर्ड नहीं दिखता. तो इनफैक्ट इनिशियल व्यू था कि मेरे को सब कुछ जचे हुए चाहिए, ताकि एक एक चीज बिल्कुल टू द टी ऐसे फॉलो होनी चाहिए, पूरा का पूरा डेटा मेरे पास में फ्लो होना चाहिए, जिसके ऊपर मैं मैक्रो डिसीजन मेकिंग कर सकूं, राइट. दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट. स्पेंट अ लॉट ऑफ एफर्ट एनर्जी इन फिक्सिंग दोज थिंग्स. वहां से मेरे को लगा कि यार जब भी मेरे को कुछ देखना होता है, मेरे को हर बार नई चीज देखनी होती है. तो मैं 20-30-50 डैशबोर्ड बनाए, उसके बाद में भी मेरी डैशबोर्ड की रिक्वेस्ट खत्म ही नहीं हो रही थी. तो फिर मैंने टीम को बोला कि भाई मेरे को डैशबोर्ड मत दो, मेरे को एक्सेल पे रो डंप दे दो, राइट. उस रो डंप के ऊपर फिल्टर लगा के, पिवट टेबल लगा के, छोटे छोटे फॉर्मूले लगा के मैं उससे अपना सेंस बना लूंगा, क्योंकि एवरी टाइम मेरे को कुछ ना कुछ नया देखना होता है. तो पहले 6 महीने डैशबोर्ड दिखता था बहुत ज्यादा. फिर 7वें महीने से अगले 12 महीने, मतलब 18वें महीने तक, अगले 6 महीने और कह सकते हो, मैंने बहुत ज्यादा एक्सेल और उसके ऊपर काफी काम किया, राइट. फिर उसमें आई थिंक टीम भी स्टेबल हो गई और सारी चीजें हो गई. तो आई थिंक मेरे जो वन डाउन्स है वो अभी भी एक्सेल और इस सब को काफी ज्यादा यूज करते हैं. मेरे लिए द सिस्टम हैज बिकम मोर लाइक ए RCA काइंड ऑफ ए थिंग, रूट कॉज एनालिसिस थिंग. तो अब मैं सबसे ज्यादा सिस्टम पे जो चीज देखता हूँ कि कभी मुझे कोई एस्केलेशन आता है, कभी मुझे किसी चीज में डिग इन करना होता है, तो मेरे को सब कुछ जचा हुआ मिलता है. मैं हमेशा वहां पे डिग इन करके वहां पे राइट इन्फॉर्मेशन को मिल जाती है, और उसके बेसिस में मैं डिसीजन मेकिंग कर पाता हूँ. और ये है डे टू डे बेसिस पे टेक्निकल डिसीजन मेकिंग की किस तरह की, किस डायरेक्शन, किस तरह के प्रोजेक्ट्स में आपको काम करना है, किस तरह के प्रोजेक्ट्स में आपकी टीम बार बार स्ट्रगल कर रही है, इस तरह की डिसीजन मेकिंग. जो मैक्रो डिसीजन मेकिंग है कि क्या आपको रिसोर्स प्लानिंग करनी है, किस तरह की हायरिंग करनी है, वो सारी डिसीजन मेकिंग तो अभी भी मैक्रो डेटा के ऊपर होती है. वो आई थिंक ERP से मिल जाता है कि कितना आपने इनवॉइस किया, कितना इंस्टॉल रेवेन्यू किया. तो मेरे लिए मतलब सबसे ज्यादा डिसीजन मेकिंग और अंडरस्टैंडिंग में जो हेल्प किया Rdash इज मेजरली अराउंड रूट कॉज एनालिसिस ऑफ थिंग्स. अंडरस्टूड, सही है. दैट इज मच रिक्वायर्ड. मतलब आई थिंक जो आप कह रहे हो कि मैक्रो लेवल डिसीजन मेकिंग और माइक्रो, ये दो चीज़ों को अगर कोई सेगमेंटेड समझ पाए, इट इज़ वेरी गुड. कि एक मैक्रो लेवल अंडरस्टैंडिंग होती है, एक माइक्रो लेवल अंडरस्टैंडिंग होती है. तो या ग्रेट. तो अमित, एक और सवाल मैं पूछूंगा, मतलब जस्ट मेरी क्यूरियोसिटी है, कभी आपसे ये मैंने पूछा नहीं, हम लोग इतना बात करते हैं, हमेशा मिलते रहते हैं. आपका फेवरेट फीचर Rdash में क्या है? मतलब जस्ट कि आपको ये फीचर इस जगह पे जब आप पहुंचते हो, प्रोजेक्ट जर्नी का वो पेज खोलते हो, आपको लगता है यार ये दिस इज वन थिंग विच आई लव द मोस्ट. देखो सबसे ज्यादा यूजफुल है DPR, हैंड्स डाउन. मेरे को कुछ भी एस्केलेशन आता है, मैं सीधा DPR खोलता हूँ. DPR का कभी कभी वीडियो बना के कस्टमर को भेज देता हूँ, उसके अराउंड देख लेता हूँ क्या मैन पावर काउंट है. मेरे लिए सबसे ज्यादा जो मैं रेफर करता हूँ दैट इज डेफिनेटली DPR. सबसे ज्यादा जो यूजफुल फीचर है हमारे लिए वो है प्रोक्योरमेंट एंड ये अप्रूवल मॉड्यूल, हैंड्स डाउन. कि बिजनेस फंडामेंटली मेरे को लगता है कि हम जचा पाए सही जगह पे, और हमें रोज रोज नहीं घुसना पड़ता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्विंग में. कि जहाँ पे हम लोगों ने ये प्रोटोकॉल बनाया कि जो भी सप्लायर इनवॉइस है ऑर्डर से मैप होकर के अपलोड होगा, और फिर वो अप्रूवल के तहत जाएगा, और अप्रूवल होने के बाद फाइनेंस पे जाएगा. तो उस अप्रूवल हायरार्की में हमने एक लेवल पे बना दिया कि भाई अगर ये मैच नहीं हो रहा तो रिजेक्ट मार दूंगा इसको, लेट इट कम बैक अगेन. तो उससे क्या है कि पूरा का पूरा बिजनेस एक शेप में आ गया है. नहीं, सही है. आई थिंक ये वाला फीचर जब आया था उसके बाद से जो मैंने भी चेंज देखा है विद इन 91 स्क्वायर फीट, द वे थिंग्स गॉट स्ट्रीमलाइंड, दिस हैज बीन मतलब रियली ग्रेट. तो वो है. अमित, एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा, उसके बाद आई थिंक वील ओपन लास्ट 10 मिनट्स के लिए टू द पीपल इफ दे हैव एनी क्वेश्चंस. ठीक है, और दे वांट टू डायरेक्टली टॉक टू यू एंड आस्क यू फ्यू क्वेरीज इफ दे हैव इन देयर माइंड. मेरा लास्ट सवाल ये है कि आपकी क्या अब एक एडवाइस रहेगी
आप बाकी एंटरप्रेन्योर्स को क्या एक एडवाइस देंगे कि टेक्नोलॉजी के साथ या टेक्नोलॉजी के बिना, या हाउ एग्जैक्टली दे शुड ग्रो, क्या इंपॉर्टेंट है ग्रोथ के लिए, किस तरीके से उन्हें करना चाहिए आगे अपना रोड मैप इन दिस आई इंडस्ट्री? थिंक अपना मतलब थोड़ा सा फिलोसॉफिकल है एक्चुअली, बट यू आर नजिंग मी इन द डायरेक्शन, तो आई विल लेट्स सी दैट फिलोसफी। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में ऑलमोस्ट एवरीबडी हैज सीन दैट स्ट्रगल कि टीम को कैसे सैलरी दें, कैसे अपना फैमिली के लिए राइट सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करें, कैसे फैमिली को एक कंफर्टेबल लाइफ दें। एंड ऑलमोस्ट एवरीबडी हु इज फाउंडिंग ए कंपनी और इवन पीपल हु आर वर्किंग इन ए कंपनी, इट गोज द सेम फॉर एवरीवन, इज सो मच एनग्रोस्ड कि भाई मेरे को आज कुछ ना कुछ करके पैसा कमाना है, राइट। ऑलमोस्ट फाउंडर्स भी ये सोचते हैं, मैं भी ये सोचता था, जो लोग कंपनी में काम करते हैं उनको भी ये मैंडेट आता है कि ये वाला काम कर दो, ये वाला जुगाड़ कर दो, इससे एक बार पैसा बनाना है, ये बनाना है। उससे क्या है कि मैंने देखा है मेरे पापा की जनरेशन में, और अभी भी मैं देखता हूँ बहुत सारे कंपनीज, स्पेशली डिजाइन बिल्ड कंस्ट्रक्शन कंपनीज में बात करता हूँ, तो पीपल हैव बीन लाइक वर्किंग 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, इवन समटाइम्स इवन लॉन्गर, 7-8 साल से काम कर रहे हैं। बट वो पैसा तो बना रहे हैं, लेकिन ऑलमोस्ट उतना ही पैसा बना रहे हैं काफ़ी टाइम से, राइट। क्योंकि एक आदमी एक लिमिट है, लिमिटेड टाइम है, वो उतना ही कर सकता है, उसमें बिजनेस में ग्रोथ नहीं है। एंड पीपल जस्ट बर्न आउट आफ्टर सर्टेन स्टेज कि आप एक कभी ना कभी सबका वो मोमेंट आता है, आपको लगता है यार कि कस्टमर खराब है, इंडस्ट्री खराब है, लोग खराब है, नहीं हो पाएगा, राइट। वो सबके साथ में एक मोमेंट आता है, जो कंपनी में काम भी कर रहा है, जो कंपनी फाउंड भी कर रहा है। मुझे लगता है कि द राइट माइंडसेट टू सर्वाइव एंड लिव हैप्पीली एंड ग्रो द बिजनेस एज वेल, कि फाउंडर्स को और टीम को भी एक ये कहीं ना कहीं व्यू रखना चाहिए कि हम प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे हैं अपने बिजनेस की। हम आज जो काम है वो तो कर रहे हैं, मतलब देयर इज अ एब्सोल्यूट नीड कि पीपल नीड टू फॉल इन लव विद द प्रॉब्लम। अगर आप प्रॉब्लम से प्यार नहीं कर रहे हो कि यार ये प्रॉब्लम मेरे को बिजनेस में सॉल्व करनी है, ये चीज़ मैं रोज स्ट्रगल करता हूँ, इस चीज़ में मैं रोज टाइम वेस्ट करता हूँ और इससे मैं थोड़ा सा अपना ऑप्टिमाइज कर लेता हूँ, बट इज इट वर्थ इट कि मैं यहाँ पे रोज टाइम वेस्ट करता हूँ। जब तक आप उस माइंडसेट में नहीं आओगे, एक ना एक दिन आएगा जब आप बर्न आउट हो जाए, आपको लगेगा कि यार मैं अपने दिन के 10 प्रोडक्टिव वर्क आवर्स में काम करता हूँ, 10 में से 4 घंटे 5 घंटे तो मैं वैसे ही प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता हूँ, जो कि मतलब जो भी मेरे बिजनेस ग्रोथ में हेल्प नहीं कर रही है मेरे को, राइट। वो वहीं की वहीं रोज की रोज वही डेली चीज़ों में। तो एक थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट जो कि न्यू स्टार्टअप में, टेक इंडस्ट्रीज में, ई कॉमर्स कंपनी जो लोग बना रहे हैं उनमें आप देखोगे काफ़ी प्रिवलेंट है। ये जो जोमेटो देखोगे, मीशो देखोगे, फ्लिपकार्ट देखोगे, इन कंपनीज में जो भी न्यूज़ कंपनी आ रही है, एवरीबडी ऑलमोस्ट टॉक अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग। बट मैंने इस इंडस्ट्री में पाया है कि लॉट ऑफ पीपल डोंट थिंक ऑफ थिंग्स इन दैट मैनर। शॉर्ट रन में यस, यू विल हैव योर ओन चैलेंजेस, उन प्रॉब्लम को डील करना बहुत जरूरी है, बट एक लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखना जरूरी है कि आप प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे हैं अपने बिजनेस में, और उस प्रॉब्लम जो आपने सॉल्व करने का सोचा है उस डायरेक्शन में आप कुछ हेडवे बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो। अगर वो चीज स्टैग्नेट रहेगी ना 1-2 साल बाद, तो फिर वो काम करने में मजा आना कम होता चला जाता है। या गॉट इट। सो आई थिंक थैंक्स अमित। हम बाकी लोगों से भी, अगर गाइस आपको कोई क्वेश्चन है तो यू कैन जस्ट चैट में आप डाल सकते हैं। सो अमित, जब तक लोग चैट में डाल रहे हैं, एक बस मैं आपका एक और लास्ट विजनरी, अगेन थोड़ा सा विजनरी क्वेश्चन है, ठीक है, कि विद टेक एंड विदाउट टेक, मतलब ट्रेडिशनली इफ वी मूव फ्रॉम हेयर एंड विद टेक इफ वी मूव फ्रॉम हेयर, नेक्स्ट 10 ईयर्स में आप कैसे देखते हो इंडिया में इस इंडस्ट्री को, फिट आउट इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कैसे ग्रो कर रही होगी, क्या नेटवर्क हो रहा होगा, लोग कैसे, क्या होगा मतलब आज से उसमें? Arpit, I think there is a lot for India to grow in terms of infrastructure and fit out. Thus, I'll just give you one fact. India का total जो commercial real estate in terms of square feet is somewhere around 900 million square feet. खाली New York metropolis alone has 1.2 billion square feet of commercial real estate. US का अगर पूरी कंट्री का टोटल देखोगे तो $70 बिलियन, $60 बिलियन कमर्शियल रियल एस्टेट अवेलेबल है। तो बेसिकली हम 1/70 मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल 2% से भी कम रियल एस्टेट, कमर्शियल रियल एस्टेट हमारे पास में अवेलेबल है, जबकि हमारी पॉपुलेशन उनसे 4 गुना है, राइट। तो जिस तरीके से इकोनॉमिक्स बॉर्डर्स आर, मतलब इन द इकोनॉमिक सेंस ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज आर गेटिंग शैटर्ड, यूएस कंपनीज आर, बहुत सारी यूएस कंपनीज के इनफैक्ट स्टार्टअप्स के भी यूएस कंपनीज के रिसोर्सेज इंडिया में काम कर रहे हैं, राइट। तो जिस तरीके से ग्लोबलाइजेशन फैल रहा है, आई थिंक एक लेवलिंग होगी, बहुत अच्छी लेवलिंग होगी, और इंडिया में कमर्शियल रियल एस्टेट में एक बहुत अच्छी ग्रोथ है। और इंफ्रास्ट्रक्चर में तो दिख ही रही है, बजट अगर इस साल का देखा है आपने तो मतलब गवर्नमेंट इज जस्ट इंक्रीजिंग द स्पेंडिंग ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। तो अगले 3 डेकेड में मुझे लगता है कि काफ़ी
हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के लिए पोइज्ड है हमारी कंट्री, एंड देयर इज अ और दीज नेक्स्ट 30 years इज द टाइम व्हेन द ग्रेट कंपनीज विल बी बिल्ड। क्योंकि इससे पहले इंडिया में 2000 से पहले तो कुछ सेक्टर ही नहीं था। 1991 में ग्लोबलाइजेशन हुआ, 8-10 साल लगे, उसके बाद में कंपनीज ने इंडिया आना स्टार्ट किया, तो सन 2000 से इंडस्ट्री खुली है। जब इंडस्ट्री खुली तो इंडिया में किसी के पास में टैलेंट नहीं था, तो जो ग्लोबल कंपनीज थी, आईपीसीज थे, उन्होंने अपने सेंटर्स डाले, उन्होंने बेसिकली इनिशियल ब्रीड ऑफ टैलेंट एक्सपर्टीज क्रिएट की, राइट। अब बेसिक लेवल ऑफ टैलेंट एंड एक्सपर्टीज इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करती है, मतलब ऑल्दो शॉर्ट सप्लाई में, लेकिन बेसिक लेवल ऑफ टैलेंट एंड एक्सपर्टीज अवेल करती है। और एक लार्ज नेटवर्क ऑफ एंटरप्रेन्योर्स है जो कि अपनी पहचान बना रहा है, अपना डिजाइन बिल्ड में सेटअप को स्केल कर रहा है। ये जो कंपनीज हैं इस टाइम पे, ये इनमें से नेक्स्ट जनरेशन की एलएनटी निकलेंगी मेरे ख्याल से कमर्शियल रियल एस्टेट में। इस टाइम पे कमर्शियल रियल एस्टेट में, फिट आउट में, इस सेगमेंट में कोई एलएनटी जैसा ब्रांड नहीं है, कोई गो टू कंपनी नहीं है कि जिसके साथ में सब काम करते हैं, राइट। सब अपना छोटा छोटा एक स्फीयर में काम करते हैं। बट नेक्स्ट 30 years आर गोइंग टू बी, नेक्स्ट 10 to 30 years आर गोइंग टू बी सुपर डिफाइनिंग मोमेंट, कि यहाँ पे वो कंपनीज बनेंगी इस सेगमेंट में हु विल लास्ट फॉर जनरेशंस। नहीं, I think yes, and I'm pretty sure we'll be part of those via Ardash or via any consultancy what we can provide to anybody as a part of industry. And I think we hope 91 square feet भी उस जर्नी में जल्दी से एक LNT टाइप शेप लेके ग्रो कर जाए। So Amit, let's start with the questions. I think the first question here is कि my team sits at the site and they feel it's more comfortable to manage on WhatsApp. Since for him it's just one site he is looking at. How do I convince that person? देखो, दोनों के लेंस से देखते हैं। वो जो बंदा एक साइट पे काम कर रहा है, उसके लेंस में क्या चल रहा होगा कि यार जो काम कर रहा हूँ मैं, वो तो मैं अच्छे से काम कर ही रहा हूँ, राइट। मेरे को अननेसेसरी डीपीआर भरने के लिए बोल रहे हैं, तो यहाँ पे तो आप उससे कुछ ना कुछ मांग ही रहे हो। यू आर बेसिकली आस्किंग दैट गाय टू डू एक्स्ट्रा वर्क, जो जिससे उसको कुछ हेल्प नहीं हो रही। उस बंदे को हेल्प हो रही है कि जब आपके बाकी डिपार्टमेंट भी आरडैश में, जब आपका फाइनेंस अपनी पेमेंट्स ये सब आरडैश पे पंच करता है, प्रोक्योरमेंट आरडैश पे काम करता है, डिजाइन फाइल्स यहाँ पे, कि भाई यहाँ पे तेरे को तू डिजाइन को एक्सेस कर सकता है, परचेज ऑर्डर वगैरह के रिक्वेस्ट का स्टेटस देख सकता है, पेमेंट के रिक्वेस्ट के स्टेटस देख सकता है, कि सारी की सारी विजिबिलिटी जो तेरे को कंपनी के बाकी डिपार्टमेंट से चाहिए वो एक जगह पे है। तो वो विजिबिलिटी तेरे को तभी मिलेगी ना जब तू भी अपने पार्ट की विजिबिलिटी बाकी लोगों को देगा, राइट। इट कैन ओनली वर्क एज अ गिव एंड टेक, राइट। बैलेंस होना चाहिए। तो दैट इज द फेयर आस्क कि तुम ये करो तुम्हें ये मिलेगा, राइट। बाकी आई थिंक शुरुआत में तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, टीम्स को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट शुरुआत में स्ट्रिक्टनेस चाहिए until it becomes a part of culture. Yes, सही है। Thanks Amit. Next question is, are you sharing project timelines or PERT chart to clients every time it's revised through Ardash? नहीं, हम ये नहीं करते। देखिए, अभी भी जो लार्ज कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे आई वर्कड एज अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर, मैंने डीएलएफ के मॉल ऑफ इंडिया में एज अ प्लानिंग इंजीनियर इंटर्नशिप भी किया था, तो वहाँ पे पूरा का पूरा प्लानिंग डिपार्टमेंट बैठता था। मैं उस प्लानिंग डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप करता था वहाँ पे, 2010 की बात है ये। तो वहाँ पे बड़ा अगर प्रोजेक्ट होता है ना, तो सब कुछ प्लान से चलता है। आप 800, 900, 1000 करोड़ रुपए स्पेंड कर रहे हो, 3000, 5000 एक्टिविटीज़ हैं, हर एक एक्टिविटी से कॉस्ट एंड लिंकेजेस हैं, तो आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लानिंग टीम चाहिए। और प्लानिंग बिकम्स द बेसिकली द फ्रंट लिवर ऑफ डिसीजन मेकिंग अराउंड द प्रोजेक्ट। इंटीरियर फिट आउट इंडस्ट्री डिफरेंट है। इंटीरियर फिट आउट में 2 महीनों के अंदर आपको काम करके खत्म कर जाना, और इतना आपके पास में बजट भी नहीं है, टाइम भी नहीं है कि आप साइट पे जाके प्लानिंग डिपार्टमेंट सेटअप करो। तो अपनी इंडस्ट्री के अंदर काम कोऑर्डिनेशन से होता है। प्लानिंग अपडेट होती है जब हमें क्लाइंट से मिलना होता है और उसको विजिबिलिटी देनी होती है। प्लानिंग से डे टू डे एक्टिविटी ड्राइव नहीं होती। आप किसी भी कोई भी, आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट, अभी हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में बहुत सारे कस्टमर्स और सप्लायर साथ में देख लिया है कि इंटीरियर फिट आउट में प्लानिंग इज टू हैव अ माइलस्टोन वाइज रिव्यू एंड मैक्रो व्यू, की 15 दिन बाद प्रोजेक्ट में देख लिया कि प्लान करके हाउ द नेक्स्ट सेट ऑफ एक्टिविटीज आर लुकिंग एट, फिर 7 दिन पहले देख लिया, फिर लास्ट में देख लिया। काम डे टू डे कोऑर्डिनेशन पे होता है। तो हम प्लानिंग को, मतलब आई डोंट कीप माय टीम की उनको प्लानिंग शेड्यूल हर रोज अपडेट करना है। वी डू अ वीकली और बाय मंथली रिव्यूज, उसमें उनको अपडेट करके लाना ताकि हमें प्रोजेक्ट की विजिबिलिटी हो जाए। बट रोज प्लानिंग अपडेट करो, रोज क्लाइंट से शेयर करो, हम 91 में प्रैक्टिस फॉलो नहीं करते। Correct. Thanks Amit. Another question is, can we use Ardash to run projects, vendors teams at multiple locations nationally and internationally, like China and Middle East? So Amit, would you like to answer? Now I think Ardash team is very happy. हमें तो बहुत छोटा सा एक कॉन्फ़िगरेशन करना है Ardash team को। We have thought about this कि हमें सॉफ्टवेयर को इंटरनेशनली लॉन्च करना है। We have to launch a small module जहाँ पे आपका टाइमलाइन कॉन्फ़िगरेशन, करेंसी कॉन्फ़िगरेशन, कुछ बेसिक चीज़ें हैं, लैंग्वेज वगैरह, उसकी एक लेयर लगेगी Ardash के ऊपर। बट येस, इफ अ बिजनेस इज सेइंग कि मेरे को इंटरनेशनल प्रोजेक्ट रन करने हैं,
हमको तो प्रोडक्ट लॉन्च करना ही आई थिंक, तो हाँ, अभी एकदम से नहीं कर सकते, चाइना की लैंग्वेज सपोर्ट नहीं करेगा आरडैश, बट यस इन अ फ्यू span of a couple of months people should be able to. Then client communication through WhatsApp, is it valuable? Yes, it is valuable. और मतलब it is so valuable कि आपको ना ये थोड़ा सा जब लास्ट के प्रोजेक्ट का डिलीवरी की डेट होती है, आप सोचोगे कि मैं डीपीआर भर के क्लाइंट को बोल दूं कि ये काम हो रहा है, वो नहीं चलेगा। कस्टमर को आपको पल पल की अपडेट चाहिए, पल पल की अपडेट आप डीपीआर से कैसे दोगे? तो दैट्स वेयर व्हाट्सएप इज द सोल्यूशन, राइट? लेकिन आप पूरा ही बिजनेस व्हाट्सएप पे रन कर रहे हो तो आप फिर बाकी क्रॉस फंक्शनल टीम्स के लिए और लीडरशिप के लिए विजिबिलिटी खो दोगे, राइट? तो व्हाट्सएप का रिप्लेसमेंट नहीं है आरडैश, एक तरह से एम्पलीफिकेशन कह सकते हो। सही है, थैंक यू अमित। अनदर क्वेश्चन इज, वी हैव गॉट multiple questions, Amit. I think I'll try to cover it in next 5 minutes. Okay. What is the percentage impact of Rdash on the top line by using Rdash software, and what has been impact in reducing cost percentage wise? तो आई थिंक अक्टूबर 2022 में हम लोगों ने सॉफ्टवेयर लॉन्च किया था अपने बिजनेस ऑपरेशंस में, और फिर प्रोक्योरमेंट लॉन्च किया था हम लोगों ने आई थिंक जनवरी फरवरी 2023 के आसपास। yes. ये टाइमलाइन है हमारी। अगर मैं बताऊं आपको, लास्ट ईयर जनवरी से लेके अभी तक हमारे जो परसेंटेज मार्जिन है वो 5% अप है। अब उसमें से कितना, जो बिजनेस लेवल पे मैं बता रहा हूँ, अब उसमें से कितना आप आरडैश को एट्रीब्यूट करोगे, कितना बाकी एफिशिएंसीज को एट्रीब्यूट करोगे, दैट्स स्टिल अ क्वेश्चन। बट यस, प्रोक्योरमेंट और बॉटम लाइन एफिशिएंसीज में 3 से 5% का इम्पैक्ट इज फेयरली एक्सपेक्टेबल। और दूसरा, हमारे आई थिंक जो ओवरहेड्स और बाकी सारी चीज़ें, ऑल्दो वी स्टिल हैव अ वेरी वेरी यू कैन से कॉस्टली ओवरहेड्स ऑन द टीम, बट दिस इज नॉट बिकॉज कि हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट के करने के लिए हमारे पास में वो मल्टीपल लेयर नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर हम एक 25-50 हज़ार स्क्वायर फीट का भी प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं तो हमें उसके ऊपर अलग से डेटा कंट्रोलर, प्रोक्योरमेंट के वो जो साइट के ऊपर जो मटेरियल के लिए जो काम करने वाले जो 1-2 एक्स्ट्रा रिसोर्स लगते हैं, फिर जो रिकनसाइल करने के लिए जो एमआईएस बनाने वाले एक्स्ट्रा रिसोर्स लगते हैं, उन लोगों की जरूरत नहीं है हमें आरडैश में, हमारी टीम में। तो उसका भी एक आई थिंक कुछ ना कुछ परसेंटेज पॉइंट इफेक्ट होगा। बाकी ट्रैवल और ये सारी चीज़ें थोड़ी सी कंटेन होती तो उससे भी, तो नेट थ्योरी है कि 10% सेव कर पाओगे। अभी तक हम जिस जर्नी में इसको अडॉप्ट कर पाए, यूज़ कर पाए, आई कैन से ऑलमोस्ट टू द ट्यून ऑफ 3 to 4% और मैक्सिमम में भी 5% वी कैन से कि हम अभी तक कर पाए। Got it. Sure, Amit. The next question is, अच्छा सवाल है, मतलब I asked the design team to come to Rdash. That was the first step for our company's adoption. But design team is only reluctant. Adoption वहीं पे अटक गया है। क्या steps होने चाहिए टीम वाइज? नहीं, ये तो देखो, आप फैंसी चीज कर रहे हो। पहले डिजाइन टीम नहीं चाहिए आपको आरडैश पे। सबसे पहले आपको चाहिए देखो, मतलब डिजाइन अगर आरडैश पे होगा तो सुपरवाइजर सबको डिजाइन की विजिबिलिटी होगी, एक अच्छी चीज है, मतलब दैट्स अ गुड टू हैव थिंग। बट फंडामेंटली डिजाइन आरडैश पे अपलोड होने से क्या आपके बिजनेस के अंदर रोबस्टनेस बिल्ड हो जाएगी? वो नहीं होगी, राइट? तो जो फीचर्स जैसे रैक की फीचर्स है, कैटलॉग फीचर्स है, डिजाइन फीचर्स है, स्नैक फीचर है, ये हमारे वो फीचर हैं जो आरडैश की वैल्यू को एम्पलीफाई करते हैं, राइट? जो कोर मॉड्यूल हैं वो है आपका बीओक्यू क्रिएट करना, बीओक्यू के अंदर आपका अप्रूवल वगैरह लेना, डीपीआर लेना, प्रोक्योरमेंट और उसके ऊपर अप्रूवल ट्रैकिंग। आप इन 4 मॉड्यूल से स्टार्ट करिए आपको, क्योंकि इन 4 मॉड्यूल में रिलेक्टेंस आपको टॉलरेट नहीं होगी। डिजाइन टीम रिलेक्टेंट है क्योंकि आपके लिए वो रिलेक्टेंस टॉलरेबल है, क्योंकि आपके लिए उस चीज का बिजनेस इंपैक्ट, डायरेक्ट बिजनेस इंपैक्ट लिमिटेड है, राइट? तो दैट्स व्हाई आपको थोड़ा सा हेड ऑन जाना पड़ेगा। यू डू द कोर मॉड्यूल्स डिप्लॉयमेंट एंड देन यू एम्पलीफाई द वैल्यू ऑफ द आरडैश थ्रू दीज सपोर्टिंग मॉड्यूल्स। गॉट इट, थैंक यू अमित। एंड आई थिंक हमारी डिप्लॉयमेंट टीम भी यही टारगेट करती है कि किस तरीके से हम लोग पहले कंपनी में एक इन स्ट्रॉन्गर मॉड्यूल्स को अडॉप्ट करवा पाएं और फिर ग्रेजुअली एम्पलीफिकेशन कर पाएं वाया अदर मॉड्यूल्स। सो या, आई थिंक वील ट्राई टू come back to you and we'll get this thing sorted. Then there is another question. I think it's in general they want an advice कि अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बता देता हूँ सवाल, कि अगर कोई बंदा हमारी टीम को छोड़ के जाना चाहता है और हमने उसे ट्रेन करके बड़ी मेहनत करी, तो हम उसे जाने देंगे, हम उसे रोकने का बहुत कोशिश करें? आई थिंक दैट्स व्हाट द क्वेश्चन इज। या हमेशा कोशिश करनी चाहिए, इट्स ऑलवेज वर्थ इट टू रिटेन द हार्ड ट्रेन्ड एम्प्लॉइज। मतलब एक कंस्ट्रक्शन बिजनेस में सॉफ्टवेयर, मेरे को अभी भी लगता है हम लोगों ने एक मोमेंट पे आरडैश वाज वन ऑफ आवर यूएसपी, राइट? हम लोगों ने डिसाइड किया कि आरडैश की यूएसपी को सब लोगों को दे देते हैं। हमारे लिए भी तो एक बिजनेस रिस्क है कि
जिस चीज़ को यूएसपी बना के चल रहे थे, वाई वी आर डिसेमिनेटिंग टू एवरीबडी, तो इट स्टॉप बीइंग ए यूएसपी, राइट? अगर 500 कंपनी मार्केट में कस्टमर पे बोलती हैं कि हम इस टेक्नोलॉजी पे सॉफ्टवेयर मैनेज करते हैं, देन 91 कुछ अलग तो यूएसपी ला नहीं रहा। दैट वाज ओनली बिकॉज कि हमको ये समझ में आ गया कि जितनी अच्छी प्रोजेक्ट टीम उतना ही कैपेसिटी का बिजनेस, राइट? और हम एक लिमिटेड प्रोजेक्ट टीम के साथ में एक लिमिटेड बिजनेस कर सकते हैं, और वो हमेशा ही लिमिटेड ही रहने वाला है, राइट? कि जितने हमारे, तो हमने सोचा कि बाकी और लोग हैं, हम ज़्यादा वैल्यू क्रिएट कर पाएंगे कि बाकी जो कंपनीज हैं वो अपनी प्रोजेक्ट टीम और उनके थ्रू अपना बिजनेस स्केल करने लगेंगे, तो हम एग्रीगेट लेवल पे इकोसिस्टम में ज़्यादा वैल्यू क्रिएट कर पाएंगे बाय बेसिकली क्या बोलते हैं, डेमोक्रेटाइजिंग द टेक। अब इस सिनेरियो में सिंपल आंसर इज यस, यू शुड ऑलवेज ट्राई टू रिटेन ट्रेन्ड एम्प्लॉयज, बट द फ्लिप साइड इज व्हेन यू ओवर ट्राई द पीपल बिकम मोर डिमांडिंग, and then some of them will leave after 3 months. You'll just waste 3 months कि वो खाली नेम सेक के लिए रुक रहे हैं, वो अंदर से अलाइन नहीं है आपके साथ में रुकने के लिए। तो अगर ये फ्रीक्वेंटली 1-2 बार हो रहा है तो इट अंडरस्टैंड कि लोगों के पर्सनल साइड पे चीज़ें चेंज हो रही हैं। अगर ये बार बार हो रहा है तो आई वुड से कि यू नीड टू लुक एट हाउ द यू नीड टू डू अ रूट कॉज एंड डू अदर थिंग्स अराउंड इट कि ये कम हो, बट ट्राई ज़रूर करना चाहिए। मैं बोलूँगा अगर एक अच्छा ट्रेंड एम्प्लॉय है और वो छोड़ के जा रहा है तो यू शुड डेफिनेटली ट्राई। एक लास्ट क्वेश्चन एक और आया है, आई थिंक इफ यू वुड लाइक टू टेक अप अमित। वी हैव जस्ट इम्प्लीमेंटेड आरडेश, थोड़ा स्लो चल रहा है मॉड्यूल बाय मॉड्यूल। हाउ मच टाइम डू यू थिंक विल टेक इम्प्लीमेंटिंग 100%? सो 100% जर्नी है इंद्रेश। हम लोग खुद भी 100% अडॉप्ट नहीं कर पाए आरडेश 91 में भी, तो सॉफ्टवेयर काफ़ी अहेड चल रहा है, बिकॉज अभी सॉफ्टवेयर में प्रायोरिटी हो जाती है कि जो आप लोगों की जो रिक्वेस्ट आती है उसके बेसिस पे टीम बनाती है, तो बहुत कुछ बना लिया है। तो 100% मेरे ख्याल से जिस मोमेंट पे आप अपना BOQ, ऑर्डर मॉड्यूल, DPR, अप्रूवल और डिज़ाइन, राइट, ये पहले 4 जो कोर मॉड्यूल हैं, अगर ये आपने ये अडॉप्ट कर लिए तो यू कैन से कि 70% ऑफ योर जॉब इज डन, आपका बेसिक बिजनेस सेटअप हो जाएगा। उसके ऊपर देन यू गो फॉर मॉड्यूल्स लाइक जो आपका कोलैबोरेशन स्नैक मॉड्यूल है, उससे आपका मेंटेनेंस और वो सारी चीज़ें सोल्व हो जाती है, कस्टमर एक्सपीरियंस सोल्व हो जाता है, डिज़ाइन कोलैबोरेशन है, रैकी है, फाइनेंशियल रिकन्सिलेशन वाले मॉड्यूल हैं, फिर आप उस पर जाइए, वो आप कर लेते हैं तो आपका 90% हो जाता है। उसके बाद में तो ये रेस है, हम आगे तक बनाते चले जाएंगे, जिस स्पीड से हम बना रहे हैं स्पीड से आप अडॉप्ट कर रहे हैं। यस, एनी डे, मतलब यही है, मतलब we'll not stop, we'll build features, we'll keep on adding things, and I think वही फीडबैक से ही बनता रहता है और तेजी से बनाते हैं हम। तो yeah, coming back to that, Amit, thanks once again, and next time we'll come with another, I think some of our another successfully deployed एंड क्लाइंट जिनकी हम स्टोरी शेयर करेंगे, जिनके साथ हम इंटरेक्ट करेंगे, जो खुद बताएंगे कि वो कैसे स्केल कर पा रहे हैं, क्या वैल्यूज़ क्रिएट कर पा रहे हैं आरडैश के साथ, क्या उनकी कंपनी में बिफोर आरडैश एंड आफ्टर आरडैश चेंज आया है, सो दैट यू गाइज कैन लिसन फ्रॉम देयर वर्ड्स इटसेल्फ, सो इट मेक्स अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस विद इन द कम्युनिटी. So that's the reason we are having these kind of webinars, and thank you Amit, thanks once again. Thank you everyone for joining, thank you for sparing time, and I hope it was fruitful for everybody. Best of luck to everyone. हम लोगों का माइंडसेट है, आपका जो बिजनेस ग्रो करेगा वही वैल्यू हम क्रिएट कर रहे हैं। तो विद आवर फुल फोर्स विल ट्राई कि आप अपना बिजनेस तेजी से ग्रो करो, आप सक्सेसफुल हो जाओ, राइट, और वही हमारे लिए वैल्यू है। तो आपको कोई भी किसी भी तरह का हेल्प चाहिए जो आपको लगता है कि आरडैश इकोसिस्टम और 91 इकोसिस्टम से आप लोगों को मिल सकती है, we will always be there for you.